Hello students. Hi, this is Pankaj Singh. Welcome to Trident's Chemistry, where we will learn topics of chemistry in conceptual and tricky ways. So, let's begin. Hello students, welcome to the chemistry lecture for the topic called carbonates compound. This is the first lecture. So we'll learn introduction part of this chapter. So let us discuss something about carbon and its compound. So we know that amount of carbon present in the earth crust and in the atmosphere is quite much, like in between. The earth crust, if I take the approximate percentage, so I can say earth crust has approximately 0.02% carbon in form of minerals. What are the minerals? You know that it's like carbonates, hydrogen carbonates, coal, petroleum, right? And the atmosphere, in the atmosphere, approximately 0.03% carbon dioxide we have. So basically, what we are learning here, we are learning the carbon compounds. We have to understand the importance of carbon, and we all know that कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इफ यू सी एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, that organic compound must contain carbon. Indirectly, what I can say? Indirectly, I can say organic compound is nothing without carbon. If you want to study organic compound, there should be a carbon atom. Carbon तो वहां पे होना ही चाहिए, right? Yes or no? अब carbon form maximum compounds. So I can say कार्बन जो होता है हमारा form large number of compounds. If I'm talking about first carbon with hydrogen, you all are familiar with the organic compound known as hydrocarbon. Yes, hydrocarbon आपने word सुना रहेगा. It also combines with the oxygen, halogen, nitrogen, है ना. कार्बन कंपाउंड में और भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि अगर मैं नाम ले रहा हूं तो मैं अल्कोहल, देन हलाइड्स, उसके अंदर भी रहेगा, मतलब जिसको हम हैलोजन बोलते हैं. तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन होता है, जिसको हमने और भी क्या नाम दिया है? अल्काइल हलाइड. अल्काइल हलाइड. ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. इसके अलावा नाइट्रोजन के साथ भी कार्बन कंबाइन होता है, लाइक अगर हम बात करें साइनाइड का, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे. ओके, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे. तो हियर व्हाट वी कैन सी कि कार्बन ने बहुत सारे कंपाउंड बनाए हुए हैं. तो अप्रोक्सीमेटली which is uncountable, even though if we count, so it has formed approximately 3 millions. It has formed approximately 3 million. We have compounds of carbon, and which is much larger than the compounds formed by all other elements put together. एक साइड आप सारे एलिमेंट्स का रख दो कंपाउंड, और एक साइड आप कार्बन के कंपाउंड्स रख दो. तो याद रखो कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द ऑल अदर एलिमेंट्स, बिकॉज हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फुल ऑफ कार्बन. इस टॉपिक के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, बिकॉज वी आर इन दी 10th स्टैंडर्ड. तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं हमें मिलने वाला है कार्बन कंपाउंड्स और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट here we are going to see the interest in the carbon compounds. Now let us understand what we know about carbon. या कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है, या कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है. एंड यू ऑल नो दैट द नेसेसरी
conditions for formation of covalent bonding which is formed by the okay. Now listen it carefully. What we know about carbon? What is the position of carbon in the periodic table? What is the atomic number of carbon? So carbon, we know that 6 and 12. Still we also know the isotopes of carbon C13, C14, but यहाँ पे हम रेफरेंस किसको लेने वाले हैं? कार्बन 6, 12 को. सो अगर हम कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वी राइट 2,4 और वी कैन ऑल्सो राइट 1s2 2s2 2p2. ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से. सो वी नो दैट कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने बेटा? 4 है. कार्बन की वैलेंसी कितनी है? वो भी 4 है. कैसे? Let us understand this. Suppose if this is the first orbit of carbon and this is the second orbit of carbon, and at the center there must be what? There must be a nucleus. At the center there must be a nucleus, and you all know that nucleus contain what? Nucleus contain neutrons and protons. Neutrons and protons. So we know that in the first orbit of carbon we have how many electrons? 2 electrons. In the second we have how many electrons? 4 electrons. Now the question is what kind of bonds are formed by carbon? So to understand this, we have to first consider the terms. Let us say the valency of carbon is 4. So how many electron does it need to become stable? We know that as per the octet rule. As per octet rule, any orbit except first orbit जो कि ड्यूप्लेट होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी होती है 8. अब कार्बन के सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटो? 4 है. सो उसके पास 2 ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन, या तो लॉस ऑफ all 4 electron from second orbit, या तो gain of 4 electron into second orbit. तभी जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा. यस और नो? रूल के हिसाब से तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है. तो लेट अस सी. अगर मैं पहले रूल के हिसाब से चल रहा हूं कि चलो ठीक है, मैं 4 के चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूं सेकेंड ऑर्बिट का, तो जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इट विल बिहेव लाइक नोबल गैस कॉल्ड हीलियम. जब मैं उसके पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूं तो बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं सेकेंड ऑर्बिट में, उनके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस. व्हेन आई टेक सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट, नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट इन सेकेंड ऑर्बिट? 4. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ऑलरेडी हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ एटम श्रिंक, छोटा हो जाएगा. तो क्या अब जो बचे 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से आप कोई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? आंसर इज नो. इफ यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बिकॉज एटॉमिक साइज इज वेरी स्मॉल, बिकॉज ऑफ small atomic size and strong force of attraction. तो इसके वजह से बेटा आप उससे 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं. तो मतलब इनडायरेक्टली व्हाट? यू कांट फॉर्म C4+. यू कांट फॉर्म C4+. अब आपको पता ही है बॉन्ड के टाइप्स. हमारे पास आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं. आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस, लाइक एग्जांपल सॉल्ट, Na सोडियम इलेक्ट्रॉन एक देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है. अब यहाँ कार्बन तो कुछ नहीं कर रहा है ऐसा, वो 4 के चारों इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा अगर उसको स्टेबल होना है तो. अब दूसरा ऑप्शन है कि अब वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सके. तो अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल रहा है और वो पुल कर रहा है अपनी तरफ, तब क्या होगा? अगर मान लो उसने पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे C- होगा.
ठीक है, अब 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहले तो एटॉमिक साइज उसका तो पहले से स्मॉल है, अब दूसरा सेकेंड ऑर्डर में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आप पांचवा अगर इलेक्ट्रॉन डालते हो तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स बढ़ेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, रिपल्शन का लेवल और भी बढ़ गया। और जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन डालते हो तो फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी एट द मैक्सिमम स्टेज। पहले तो साइज बहुत कम है, ऊपर से आप कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुट कर रहे हैं, तो आप फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मैक्सिमम रिपल्शन। सो आई कैन से because of force of repulsion it will not form C minus 4 as well. Now what is the option left? Because carbon wants to become stable, then what is the option left now? Yes, it has a 4 valence electron, 4 valency same, ना तो वो गेन कर पा रहा है 4, ना तो वो 4 लूज कर पा रहा है. So in that case what is left? The left is third option. The left is third option, which is nothing but शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है. तो नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी if the bond is formed by sharing of electron, that bond is known as what? Yes, that bond is known as covalent bond. क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन वो लूज करता कंप्लीटली या गेन करता तो डेफिनेटली वो कौन सा बॉन्ड बनाता? आयोनिक. बट यहाँ पे ना तो गेन कर पा रहा है ना तो लूज कर पा रहा है. यू नो द रीजन बिहाइंड इट राइट नाउ. So it has only one option left, is covalent bond, which is known by sharing of electron. So how can I define a covalent bond? A chemical bond. A chemical bond between two atoms of the, it can be same element or different element. Same element or different elements by sharing of electron. By sharing of electron. Okay, understood everyone? तो अब आपके पास आइडिया मिल गया कि कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट. Now the next question. Now the next question is how many covalent bond it can form? Answer is very simple. 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑर्बिट में है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन सामने से शेयर करके मिलेंगे, तो कितना बना पाएगा बेटा? 4. याद रहेगा सबको? यस, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसके 4 इलेक्ट्रॉन खुद के, सामने वाले के 4, टोटल कितने हो जाएंगे शेयरिंग में? इट विल बिकम 8. और उसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा. सॉरी, ऑर्बिट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है. तो नाउ इफ आई वांट टू डिफाइन व्हाट इज ऑक्टेट रूल, द ऑर्बिट मस्ट हैव एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्सेप्शन इज देयर हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि उसमें क्या बनेगा? ड्यूप्लेट. उसमें क्या बनेगा? ड्यूप्लेट बनेगा. अंडरस्टूड एवरीवन? yes. So we got to know something about the carbon. Now we will see about the covalent bond, necessary condition for the formation of covalent bond. So necessary condition for the formation of covalent bond. तो अब हमने ये सीख लिया है कि what is mean by covalent bond. Yes, what is mean by covalent bond. तो जो सबसे पहला कंडीशन है वो आप लोग को याद रहना चाहिए. The combining atom must have which character? अगर वो मेटल होगा तो बेटा डेफिनेटली वो आयनिक बनाएगा, तो which character होना चाहिए? नॉन metallic character. Second, what second we can thought about it? Means it contain
Yeah, I can write outermost shell have approximately from where to where electron, because अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन, तो लूज कर सकता है वो, है ना? तो मस्ट शैल हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो आप लोगों ने देख लिया शेयर कर रहा है वो, है ना? तो दैट इज 4 to 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए, या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7। आगे हम एग्जांपल देखेंगे शेयरिंग के, डोंट वरी अबाउट इट। फॉर एग्जांपल, अब एक्सेप्शन भी बेटा हम साथ में लिख देते हैं, बिकॉज हमें डाउट आएगा सर हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट वो भी कोवेलेंट बनाता है, तो याद रखो ये। सो इन हाइड्रोजन, what, there is only one electron or one valence electron, okay, but it also form covalent bond by completing its duplet। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके मिल गया तो उसको क्या बुराई है, आराम से एक क्या बना देगा, कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे बना देगा। okay, if I say outermost shell must have 4 to 7 electron, what does it mean? The combining atom needs how many electron to become stable? Yes, the combining atom, your atoms needs 1, 2, 3 or 4 electrons to complete what? Their what? Octet. Okay, हाइड्रोजन का बेटा एक्सेप्शन है, what? It forms ड्यूप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम कोर जिसको हम बोलते हैं, ये सुनो। कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और द क्वेश्चन इज, द शेयरिंग मतलब व्हाट इज शेयरिंग एग्जैक्टली, क्या होने वाला है? तो याद रखो, द कंबाइनिंग एटम, द कंबाइनिंग एटम शुड, जितने भी बॉन्ड बनाने हैं, या अगर दो सामने आमने सामने दो एलिमेंट हैं और अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो याद रखो कंबाइनिंग एटम शुड व्हाट? कंट्रीब्यूट equal number of electron to form a pair of electron to be shared। इसका मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटम करेगा, फर्स्ट एलिमेंट करेगा, दूसरा सामने वाले करेगा, तभी शेयरिंग होगा। तो याद रखो, वन बॉन्ड, वन कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड बनेंगे? एक। तो अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आमने सामने मिला के तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस हम देखने वाले हैं। अंडरस्टूड? ये सुनो, एंड व्हाट आई कैन से आफ्टर, why we are sharing electron, why we are losing electron, why we are gaining electron, what is the reason behind it? At the end, everybody, every elements want to become stable like noble gas. So after sharing pair of electrons among each other, क्या हो जाएगा? atom should attain stable electronic configuration, like what? Like noble or inert gas, noble or inert gas. Understood everyone? So these are the necessary condition for the formation of covalent bond. So we got to know about the introduction part of carbon,
then we got to know about the carbon, why it is not forming a C4 plus, why it is not forming C4 minus, why it is forming or completing its octet by sharing of electron, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस हैं. अंडरस्टूड बच्चों? यस एवरीवन? ओके बच्चों, नाउ विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो पहले तो दिमाग में बिठा लो, व्हाट इज मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. So if I want to go for classification of covalent bond, what we need to understand? एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? जस्ट टेल मी एनी स्टूडेंट्स. सर 2. वेरी गुड. तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. व्हाट विल कॉल इट एज? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, और मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले शेयर किया था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है सामने सामने, तो 2 इलेक्ट्रॉन में शेयर कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड. यस. इफ आई हैव 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स, so it will be triple covalent bond. Okay, don't worry, I'll explain you all the formation of single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. First we understand what is the definition of this, how we can write an exam if it is asking the exam. So a single covalent bond, a single covalent bond is formed, by the sharing of one pair electron between the 2 atoms. So a single covalent bond is formed by sharing one pair of electron. Are you getting this? One pair of electron between 2 atoms. ठीक है? अगर 2 एटम के बीच में अगर एक सिंगल लाइन है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको बता देता हूं. एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और कोई तरीका नहीं बेटा. ठीक है? और क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर तो आप लोग को पता ही है किस तरीके से लिखा जाता है, तो वो भी मैं आपको इसी के साथ में बता दूंगा. जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस या डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर सेम एटम है तो डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, कंबाइन हो रहे हैं. अलग अलग एटम कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक को क्रॉस से, एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से. तभी तो आपको समझ में आएगा ना किसका इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो रहा है. तो इट शुड बी, देयर मस्ट बी अ सम सेपरेशन पार्ट, है ना. तो अगर एग्जांपल में लिखता हूं, एग्जांपल वेरी सिंपल. व्हाट कुड बी द एग्जांपल? हाइड्रोजन Cl2, मतलब क्लोरीन गैस हो गया आपका. C2H6 जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बहुत फेमस कंपाउंड है ये. इथेन है ना, बता सकते हैं इसको. और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिस इज व्हाट द एग्जांपल्स ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अब अगर मुझे डबल कोवेलेंट बॉन्ड डिफाइन करना है, तो इसको हम बॉक्स में ऐसा सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे. तो अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे रिकॉग्नाइज होगा? ये 2 लाइंस होंगी, 2 एटम के बीच में ऐसे 2 लाइंस होंगे, बिकॉज सामने वाले ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर किए और उसके सामने वाले ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए. और शेयर क्यों किए हैं? बिकॉज दे वांट टू बिकम स्टेबल लाइक नोबल गैस. उतने इलेक्ट्रॉन को उनकी जरूरत है, क्योंकि उन्हें तो गेन कर पा रहे हैं ना तो लूज कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको शेयर करवाने की, है ना. तो डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ bond is formed by sharing of 2 pairs of electron between 2 atoms. The question, sir, वो same atom भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है? Answer is yes. They can be same, they can be different. The bond can be formed between the same atom as well as between the different atom. अगर एग्जांपल ले लें, बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है. यस,
उसके बाद दूसरा एक एग्जांपल और ले लेंगे, सूट। अभी कैसे बनेगा बच्चों, इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लो, हम डिटेल में स्टडी करेंगे हाउ दिस बॉन्ड्स आर फॉर्म, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट very thoroughly. I hope now you all are getting this, how the bonds are formed, how the single covalent bonds are formed, how the double covalent bonds are formed. Now a triple covalent bond, मतलब 3 लाइन आएगा, है ना। इसको हम प्रॉपर लिखेंगे तो कितने बॉन्ड देखेंगे बेटा, 1 2 3 is formed by what, sharing of how many electron pairs, yes 2, sorry it must be 3 electron pair between two atoms. Yes everyone, so what is the example, can anybody tell me? क्योंकि अगर आपको रूल से याद है कि कंबाइनिंग अगर एटम अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 1 बनेगा, 2 है तो 2 बनेगा, 3 है तो 3 बनेगा, और 4 में तो आपको पता है सिंगल 4 बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, वो सारी चीजें हम अभी समझेंगे, ठीक है। ओके, तो द एग्जांपल वी हैव इज N2 नाइट्रोजन गैस और C2H2, दिस इज हाइड्रोकार्बन, इसका नाम है इथाइन, ETHYNE, ETHYNE, and also very famous as the name is acetylene. आपने सुना रहेगा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यूज्ड ऑन द रेलवे ट्रैक, वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस एप्लीकेशन ऑफ एसिटिलीन, ठीक है, ये तो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, बट आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस, single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond, yes everyone, okay. Now we'll see the formation of covalent compounds, we'll see the formation of covalent compound, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है विद द डिफरेंट एग्जांपल, जो भी एग्जांपल हमने लिए हैं वो सारे एग्जांपल को हम स्टडी करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो formation of single covalent bond, I just want all you to understand this concept very simple तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैं हेल्प लेने वाला हूँ, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या क्रॉस, तो याद रखिएगा, आई एम गोइंग टू टेक द क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर हियर टू एक्सप्लेन यू ऑल हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर टेकिंग प्लेस, ओके। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो बेटा जो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं दैट इज व्हाट, हाइड्रोजन। नाउ आई नो दैट हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ बेटा, H2 लिखा हुआ है, तो व्हाट आई कैन से दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, और हमें हाइड्रोजन के बारे में क्या पता है, हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, है ना। तो अब ये या तो सामने वाले से गेन कर ले, अब अगर ये गेन नहीं कर पा रहा है तो ये खुद के साथ कंबाइन होता है, ये खुद के साथ कंबाइन होता है, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, दूसरा वाला भी जो सामने हाइड्रोजन है उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो अगर मैं पहला हाइड्रोजन यहाँ रखूं और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ रखूं, एक के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है बच्चों, ये बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट। अब कोवेलेंट कैसे बनेगा, अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे अभी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, अब शेयर होने के बाद उसके पास भी 2 हो गया, है ना, और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी सेम कंडीशन, another hydrogen also have the same condition, or you can see this like this, if I'm taking this in this way, तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इससे क्या हुआ, इस हाइड्रोजन का भी क्या कंप्लीट हो गया, डिप्लेट, और इसका भी क्या कंप्लीट हो गया, डिप्लेट, एंड बॉन्ड कितने बन गए, अ सिंगल कोवेलेंट bond. Understood everyone? Yes, I hope you all are getting this. Now
if I take the second example as a chlorine molecule, मतलब इसमें कितने क्लोरीन एटम है? 2 क्लोरीन एटम के साथ कंबाइंड हुआ है। नाउ टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन एटम? हमें पता है 17 होता है, जिसको हम लिखेंगे 2 8 7। के शेल में 2 है, एल में 8 है और एम में 7 है। ठीक है, अगर आप देखोगे इसकी जो वैलेंसी है कितनी बेटा? 1 है। तो वैलेंसी मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब वो एक बॉन्ड ही बना सकता है, और सामने कौन? उसके क्लोरीन ही है। और अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में? 7 है, और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए। अब अगर वो क्लोरीन के साथ ही कनेक्टेड है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्वेश्चन, सर व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो बेटा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब अगर दोनों एटम सेम है तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, पुल नहीं कर सकता, कोई अपना इलेक्ट्रॉन पूरा लूज नहीं कर सकता, नहीं तो क्या बन जाएगा? आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों अगर एटम सेम है तो नेचर भी सेम होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो लेट अस सी नाउ हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। एक पहला क्लोरीन यहाँ पे है, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे है। तो अगर मैं पहले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 and 7, how many electron does it need now? Only and only 1 electron. दूसरे वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो एग्जाम में पूछ सकता है, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। तो बेटा आपको सेम टू सेम तरीके से ड्रॉ करना है। देखिए, अंडरस्टूड एवरीवन? तो अगर मैं ये समझूं कि ये क्लोरीन को यहां से ये इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब काउंट करो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जस्ट काउंट इट। जस्ट काउंट इट आफ्टर शेयरिंग द 1 इलेक्ट्रॉन बिट ऑफ अनदर क्लोरीन। 8 दिख रहे हैं। क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट। तो अब ये क्या होना चाहिए? 2,8,8 हो गया लगभग। तो किसके जैसा बिहेव करेगा? आर्गॉन जैसा हो गया नोबल गैस। व्हाट अबाउट अनदर क्लोरीन एटम? उसके साथ भी सेम कंडीशन हुआ। यस, 7 दिख रहे हैं और एक तो सामने वाले क्लोरीन का है, तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा? 8 हो गए। क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस एवरीवन, अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ठीक है, तो वैसे ही आप दूसरे एलिमेंट का भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप ट्राई कीजिएगा एलिमेंट नंबर थर्ड, दैट इज HCl। अब अगर आप देखोगे, मतलब ट्राई करना, मैं फिर भी बता देता हूं। तो अभी तक जो दोनों मैंने एग्जांपल लिया सेम एलिमेंट के लिया। अब यहाँ पे एलिमेंट क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन, क्या सर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा? हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्लोन खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा अपनी तरफ, बट कंप्लीटली नहीं खींच पाएगा। सो दैट हाइड्रोजन पूरा कंप्लीट प्लस हो जाए, क्लोरीन पूरा कंप्लीट माइनस हो जाए तो आयनिक बन जाएगा, नहीं। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा कौन से टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है सर जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है? तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अगर डिफरेंस आ जाएगा, मतलब कि दो डिफरेंट एलिमेंट और एक के पास थोड़ा पावर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का, तो उसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बट इलेक्ट्रॉन शेयर ही होगा, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है आगे लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये सीख रहे हैं हाउ द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मिंग बाय द क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। तो आई नो दैट नाउ हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है बेटा? सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो हाइड्रोजन को एक चाहिए, क्लोरीन को भी एक चाहिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, जैसा कि अब हमने दोनों एग्जांपल में देखा। अब मैं अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को आमने सामने रखता हूं, ठीक है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? क्लोरीन शेयर कर लेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन विल आल्सो शेयर द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। सो हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया बेटा? ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और क्लोरीन का क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों स्टेबल हो गए। और इस तरीके से ये जो बॉन्ड बन जाएगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिंगल कोवेलेंट
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ अब सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा यहां शेयर होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके ठीक है, एग्जांपल हमने क्या लिया था? O2 लिया था। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग। अब अगर ऑक्सीजन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर उसको स्टेबल होना है, या तो 2 गेन कर ले या तो 6 लूज करे, तो गेन करता है। लेकिन गेन तो तब कर पाएगा ना जब कोई उससे वीक वाला होगा जिसका इलेक्ट्रॉन पुल कर सके। अब वो इस फॉर्मूला में, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में किसके साथ कंबाइंड है? ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइंड है। दोनों सेम एटम है। वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड दो सेम और दो अलग एटम के बीच में भी हो सकता है, लेकिन अब मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया है, पोलर एंड नॉन पोलर, है ना? तो ये तो क्या होने वाला है? नॉन पोलर होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाला, बिकॉज दोनों एटम्स क्या है? सेम है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पहली बात तो वैलेंसी समझिए इसका। वैलेंसी कितना है इसका? 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड कितने बना सकता है? 2 बना सकता है। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6 है। वही उतने ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। तो अगर मैं पहले ऑक्सीजन को ऐसा लिख के और दूसरे ऑक्सीजन को उसके सामने रखता हूं, और पहले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को इफ आई रिप्रेजेंट बाय क्रॉस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के सामने रख रहा हूं जितने बॉन्ड बनने वाले हैं और जितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है ना? आप देख सकते हो। यस। तो अगर इनके बीच में अब अगर शेयरिंग हुआ तो ये शेयरिंग होगा, यहाँ पे डबल बनेगा। तो ये सर्कल कैसा बनेगा बेटा? यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यस और नो? फॉर दिस ऑक्सीजन, फॉर अनदर ऑक्सीजन अगेन इट इज 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। और जो बॉन्ड बना बेटा, वो कौन सा बॉन्ड बना? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। Sharing of electron, everything is sharing here, everything is a sharing here. Now the another example which is very important for the second double covalent bond is कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब देख सकते हो यहाँ पे, अब ये अलग अलग एलिमेंट है और टोटल मिला के 3 है। तो अब कैसे अरेंजमेंट करें? तो अब सोचो, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, बरोबर है? यहीं से आप कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में जानना सीखोगे। 4 बना सकता है, करेक्ट? कितने बना सकता है? 4। एक ऑक्सीजन कितने बना सकता है? हमें अभी पता चला। कितना? ऑक्सीजन 8 है, इसके वैलेंस 2,6 लिखते हैं। कार्बन 6 है, 2,4 लिखते हैं। तो इसका वैलेंसी जो है वो 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब वो सिंगल सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल और सिंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है। तो लेट अस सी नाउ। अब मैंने कार्बन को रखा यहाँ पे। अब ऑक्सीजन का अरेंजमेंट ऐसे तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मुझे वो बॉन्ड किसके साथ दिखाना है? कार्बन के साथ। तो मैंने क्या किया, एक इस साइड रखा और एक पीछे के साइड रखा। मैंने कार्बन को कार्बन के पीछे साइड रखा। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? अभी डॉट से। ओके। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 इधर बना रहा है, 2 इधर। टोटल कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन उसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड कितने बेटा? 2 हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है? अब ऑक्सीजन के देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 8 यहाँ पे हो रहा है, काउंट करते रहना तुरंत। और 8 यहाँ पे भी हो रहा है ना बच्चों? और कार्बन के कितने हो रहे हैं जरा हम चेक करते हैं, कार्बन के कितने हो रहे हैं? 4 इधर, 4 इधर। कितने हो गए बेटा कार्बन के भी? 8 हो गए। तो कैन यू सी द मैजिक ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स? हर कोई कोवेलेंट, हर कोई ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। डेफिनेटली देयर इज एक्सेप्शन एज वेल, बट यहाँ पे हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, कार्बन के साथ हो रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हो रहा है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। देन व्हाट इज द थर्ड वन? ट्रिपल
कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, इसमें एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, C2H4। ठीक है, अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में जैसा कि मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लगेंगे बेटा शेयरिंग के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर लगेंगे। और एग्जांपल मैंने पहला क्या बताया था, N2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ट्रिपल में N2 लिया है, डबल में O2 लिया है ना, और सिंगल में Cl2 और H2 लिया है। तो N2 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 7, 2,5 K और L। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो 3 गेन कर ले या तो 5 लूज कर दे। अब तीसरा ऑप्शन क्या मिल गया उसके पास, शेयरिंग का, क्योंकि ना तो उसके साथ ऐसा कोई कनेक्टेड है जिससे वो खींच ले तो गेन नहीं कर पा रहा है, ना तो लूज कर पाएगा, पांचों लूज नहीं कर पाएगा, तो शेयर कर सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ, खुद के साथ अगर कोई कनेक्ट हो रहा है तो शेयरिंग होता है बेटा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए मुझे, दैट इज व्हाट, 5 इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज वैलेंसी, 3। मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, ये 3 बॉन्ड बना सकता है एट ए टाइम, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। यस, मैंने आप लोग को हिंट भी दिया था, डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है और ट्रिपल कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब दो नाइट्रोजन को सामने सामने रखिएगा। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस एंड डॉट से रिप्रेजेंट करो। अब 3 है ना, तो 3 सामने रखेंगे। आप लोग देख सकते हो जितने बॉन्ड मुझे बनाने हैं उतने ही मैं शेयर कर रहा हूं सामने। तो कितने बन गए बेटा, 3 बन गए। अब अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए और इस नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों के पास कितने हो गए, 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम C2H2 ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था C2H4, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये इस तरीके से होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कार्बन का सिंगल बॉन्ड। तो हर कार्बन के पास देखो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। अगर आप इसको कट करो तो इसके पास 1 2 3 4 बना रहा है, और हाइड्रोजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ। अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो 1 2, और इसने खुद कार्बन के साथ भी कितने आपस में बॉन्ड बने बेटा, डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है। जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, वैसे कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड पॉसिबल है। अब C2H2 अगर हम देखें तो हम पहले अरेंज कैसे करेंगे, उससे पहले हमें पता चलना चाहिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की वैलेंसी बेटा 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन का 1 है तो इसका 1 है, वो मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो अरेंजमेंट देखो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से, कार्बन कार्बन, एक साइड इधर हाइड्रोजन, एक साइड इधर हाइड्रोजन। अब समझिए बात को, हर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और उसको 4 और चाहिए। तो कार्बन पहले सोचेगा कि यार हाइड्रोजन तो एक ही देगा, तो इसके साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं। ये भी हाइड्रोजन एक ही देगा, इसके साथ एक बना लेते हैं। बाकी बचे 3 तो हम आपस में बॉन्ड बना लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे ट्रिपल बन गया, यहाँ पे सिंगल बन गया। तो इस तरीके से कितने हो गए, सबके हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए और कार्बन के देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इस कार्बन का यहां से लोगे ना, यहां से यहां तक लेंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। और इस कार्बन का भी आप यहां से यहां तक कंसिडर करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन का यहां से यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन। Understood everyone? So this is how the formation of covalent bond is taking place. This is how the formation of covalent bond is taking place. एक बार आपको अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे बॉन्ड बनता है तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे कि बहुत फेमस कंपाउंड है, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, लेकिन वो सिंगल कोवेलेंट का है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्थ एग्जांपल CH4, बहुत फेमस कंपाउंड है, आप सबको पता है, मीथेन। अब हमें ये पता चल चुका है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, 1 होता है। तो एक कार्बन के हम चारों तरफ क्या रखेंगे, हाइड्रोजन। और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटे, 4। तो इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, एक एक, एक एक सबके सामने रख दिया हमने। आप शेयर करवा दो, तो एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हर हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो रहा है, एवरी हाइड्रोजन कंप्लीटिंग देयर ड्यूप्लेट। एट द सेम टाइम कार्बन इज कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। तो इन सब चीजों से आपने कार्बन के बारे में हमने क्या सीखा, व्हाट वी लर्न अबाउट कार्बन। yes, definitely we have learned something very important is, let me tell you first,
व्हाट वी लर्न अबाउट द कार्बन हियर, कि कार्बन जो है, जो हम कार्बन स्टडी कर रहे हैं, तो कार्बन खुद में सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, खुद में डबल बॉन्ड भी बना सकता है इस एग्जांपल के जैसा, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। क्वेश्चन, सर क्या 4 बॉन्ड नहीं बन सकता? बेटा आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम्स कम्स क्लोजर। तो ऑलरेडी कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इतने क्लोज आ चुके रहते हैं कि अब उससे ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते वो, नहीं तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बिकॉज व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट टुगेदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो उन सब बातों को ध्यान में रख के यहाँ पे हमें याद रखना है कि कार्बन कार्बन के मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं। तो क्वेश्चन, सर बाकी के बॉन्ड कहाँ पे जाएंगे? तो बेटा बाकी के लिए उनको दूसरे के साथ कंबाइन होना पड़ेगा, जैसे पहले वाले में ये 3 अलग लोगों के साथ कंबाइन होंगे, है ना, और यहाँ पे ये 2-2 के साथ कंबाइन होंगे अलग अलग, और यहाँ पे ये 1-1 के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1 हाइड्रोजन रखा था, यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन रखा था, और लास्ट वाला एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो इथेन का हो जाएगा, C2H6। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल बेस्ट है, C2H6, C2H4 एंड C2H2। इनको हम फ्यूचर में पढ़ेंगे किस नाम से? अल्केन के फैमिली में आएगा ये अल्कीन के फैमिली में आएगा, और ये अल्काइन के फैमिली में आएगा। तो बेटा ये सारी चीजें याद रखना। अल्केन मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। यस, बड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को, सारे बच्चों को समझ में आ गया द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, डबल, सिंगल एंड ट्रिपल? समझा सबको? सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यस एवरीवन। नाउ नेक्स्ट टाइम वी लर्न, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था बीच में, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड देन द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले कोवेलेंट बॉन्ड का, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन विल कम टू द पॉइंट वेयर द कार्बन का हम वर्सेटाइल नेचर पढ़ेंगे, एंड एग्जैक्टली व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज with the carbon we are going to study in the next lecture. Understood everyone? So till now just prepare this and be ready for the next lecture.